أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللہ وبرکاتہ۔ تو اب ہم آیت نمبر 19 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور پچھلی آیت میں ہم نے منافقوں کا ایک گروہ کے بارے میں سمجھا تھا مثال کے ذریعے، اور یہاں بھی ایک دوسرے گروہ کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے مثال کے ذریعے۔ تو یہ بھی ایک مثال ہے۔ یہاں کیا گیا ہے کہ او یا کا صیب، کا مطلب ہوتا ہے جیسے، صیب یعنی بارش، طوفانی بارش، زوردار بارش جس کا ایک ایک بوند ایک ایک مٹھی کے برابر ہو، بہت بڑی زوردار بارش۔ من السمائی آسمان سے، کہنے کا مطلب ہے کہ سیدھا آسمان سے اس شخص پر گر رہی ہے بارش۔ فی ہی، اس میں غلومات اندھیرے ہیں، بہت سے اندھیرے، یعنی بادلوں کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، اس کے بعد بارش جب بہت طوفانی تیز بارش ہوتی ہے تو سامنے کچھ نظر نہیں آتا، وہ ایک بھیامنا اندھیرا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر بارش کے نیچے کوئی کھڑا ہو اور اس کے اوپر بارش برس رہی ہو تو وہ آنکھیں کھول نہیں پاتا، بھاگ کر شیڈ کی طرف نہیں پہنچ پاتا ہے، وہ بھی ایک اندھیرا ہے۔ تو بہت سے اندھیروں میں ہے ورعد، اور اس میں گرج ہے، کڑک ہے، تھنڈر ہے، آوازیں ہو رہی ہے، وہ برق، اور بجلی ہے، بجلی کی چمک ہے، لائٹننگ ہو رہی ہے۔ تو بہت شور ہے، گڑگڑاہٹ ہے اور ڈراؤنی آوازیں ہیں، نہ آسمان نظر آ رہا ہے، نہ زمین نظر آ رہی ہے، آگے پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ایک قدم آگے بڑھانا بھی مشکل ہے کیونکہ پتہ نہیں آگے کھڈا ہے یا کھائی ہے، کہاں پیر پڑے گا، مطلب یہ یا دیوار سے ٹکرا جائیں گے یا کسی پیڑ سے ٹکرا جائیں گے، ہمیں نہیں پتا۔ یہ اس طرح سے ایک انسان پھنس گیا ہے جیسے۔ جعلونا، وہ ڈال لیتے ہیں، جعل کہتے ہیں اس نے کیا، جعل کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا، اور یجعلونا وہ ڈال لیتے ہیں، یہ کانٹیکسٹ کے اکارڈنگ اس کا میننگ چینج ہو رہا ہے۔ ڈال لیتے ہیں اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں۔ اصابعہم انگلیوں کو کہتے ہیں، اور یہاں فنگر ٹپس کی بات نہیں ہو رہی، انگلیوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، یعنی کانوں کو بہت زور سے دبا لیتے ہیں۔ من الصواعق، بجلی کے کڑاکوں سے، تو بجلی کے کڑاکوں سے، خوفناک آوازوں سے، بجلی کی گرج سے، تھنڈر کلیپنگ سے ڈر کے مارے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دبا لیتے ہیں، حذر الموت، بچنے کے لیے موت سے۔ کیا یہ پاسبل ہے؟ یعنی دیکھیں، یہ نارمل ہیومن ٹینڈنسی ہے، جب کوئی انسان بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور بہت خوفناک آوازیں اس کے کانوں تک آ رہی ہوتی ہے اور اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اب تو میں مرنے والا ہوں، تو وہ ڈر کے مارے اپنے کانوں کو بند کر لیتا ہے تاکہ وہ آوازیں اس تک نہ پہنچیں۔ یعنی یہ ایسا ہے نا کہ موت سے تو آپ نہیں بچ سکتے، اب جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، لیکن کم سے کم یہ ڈراؤنی آوازیں جو میرے کانوں تک آ رہی ہے وہ میں کسی طرح روک لوں، اور ہم اپنے کانوں میں انگلیاں دبا دیتے ہیں۔ تو یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ ڈر جاتے ہیں تو یہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں موت کے ڈر سے۔ تو کیا کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے موت ٹل جائے گی؟ نہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے، محیطم گھیر رکھا ہے، بالکافرین کافروں کو، یعنی اللہ کے کنٹرول میں ہے کافر۔ یہ ساری سچویشن وہ بچ کے نہیں نکل سکتے، سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور وہ اندر باہر دل یعنی چہرہ سب جانتا ہے کہ باہر سے کیا ہے، اندر سے کیا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔
تو اصل میں یہ اگزامپل ہے منافقوں کے لیے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ کافروں کو گھیر رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ دیکھیے منافق جو ہوتا ہے وہ ایمان سے نسبت کفر کے زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی اسلام کا ناٹک کر رہا ہوتا ہے سامنے، اور دل میں وہ اسلام پر یقین نہیں کرتا ہے، وہ سچ کو قبول نہیں کرتا ہے، وہ سچائی کو دل میں چھپاتا ہے، وہ سچائی سے انکار کرتا ہے، تو وہ کافر ہے، اصل میں دل سے وہ کافر ہے، باہر سے وہ مسلمان دکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی کا نام ہے منافقت۔ تو وہ منافق جو ہوتے ہیں وہ کفر کے زیادہ قریب ہوتے ہیں ایمان کی نسبت۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی کی چمک، یخطفو، کہ وہ اچک لے جائے، ابصارہم، ان کی نگاہوں کو، قریب ہے، ممکن ہے، اٹ از کلوز، آلموسٹ، یہ پاسبل ہے کہ بجلی کی کڑک ان کی آنکھوں کو چھین کے لے جائے، یعنی ان کی دیکھنے کی نگاہیں ان کی چھن جائے، ان کی دیکھنے کی قوت، ان کی دیکھنے کی صلاحیت چھن جائے۔ تو پہلے ہی اتنے اندھیرے ہیں، بھیانک رات ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھیں بھی چلی جائیں۔ کلما، جب کبھی، اضاء، وہ روشن کرتی ہے، لہم، ان کے لیے، کون روشن کرتی ہے ان کے لیے؟ بجلی روشنی کرتی ہے ان کے لیے، بجلی کی طرف اشارہ ہے، مسو فیہ، تو وہ چلتے ہیں اس میں، تھوڑے سا چل پڑتے ہیں اس میں، جب ان کو تھوڑے سے کچھ نظر آتا ہے، جب روشنی ہوتی ہے بجلی کی کڑک سے تھوڑا کچھ نظر آتا ہے تو وہ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، کچھ چل پاتے ہیں۔ صحیح کہتے ہیں بھاگنے کو، لیکن یہاں کہا گیا ہے مشو کا مطلب ہے تھوڑا سا چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، جب وہ اندھیرا کر دیتی ہے، یعنی بجلی جب اندھیرا کر دیتی ہے، علیہم، ان پر، قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب تھوڑے سا اجالا ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں، کیسے تھوڑا آگے بڑھیں، اور وہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی پھر سے اندھیرا ہوتا ہے وہ وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہیں جام ہو جاتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں آگے سٹیپ ان کا اگر رکھتے ہیں کس ڈائریکشن میں رکھیں اور کہاں کیا ہے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وَلَوْ شَاءَ، اگر چاہتا، وَلَوْ، اور اگر، شَاءَ، چاہتا، یہ ان شاء اللہ جو ہم بولتے ہیں وہ شاء جو ہوتا ہے وہ چاہتا اللہ، اگر چاہتا اللہ، وہ سیم ہے یہ انشاء اللہ جیسا، کہ وَلَوْ شَاءَ، اگر چاہتا اللہ سبحانہ تعالیٰ، لَذَهَبَ، البتہ وہ لے جائے، بِسَمْعِهِمْ، ان کے کان، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو، اِنَّا، بے شک، اللہ سبحانہ تعالیٰ، علی، اوپر، کلی، ہر ایک، شیء، چیز کے، قدیر، قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو ان کی آنکھیں اور ان کے کان لے جاتے، یعنی نہ یہ دیکھ پاتے نہ یہ سن پاتے، لیکن ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، مہربانی ہے کہ کچھ ان کے پاس کان ہے اور کچھ آنکھیں ہیں، کچھ یہ دیکھ پا رہے ہیں، اندھیرا ہے، بارش ہے جس کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہے، کانوں میں انہوں نے انگلیاں ڈال رکھی ہے، سن نہیں پا رہے، لیکن پھر بھی کچھ سنائی دے رہا ہے، کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ پچھلی اگزامپل میں ہم نے دیکھا تھا سمم بکمن امیون، یعنی بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے بھی ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، مہربانی ہے کہ اتنی سختی ان کے ساتھ نہیں کی گئی ہے، اگر چاہتا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، کیونکہ آگے لکھا ہے بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، چاہتا تو لے جاتا، لیکن اب تک ان کے پاس یہ موجود ہے۔ تو اب ان ایگزامپلس کو ہم دوبارہ سمجھتے ہیں کہ کس کانٹیکسٹ میں کہا گیا ہے۔ او کصیب من السماء، اور جیسے زوردار بارش آسمان سے، فی ہی، اس میں، ظلمات، اندھیرے ہیں، ورعد، اور گرج ہے، اور بجلی ہے، وبرق، یعنی جو یہ کصیب، بارش کی بات ہو رہی ہے، بارش سے قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے کہ جب
वही इलाही उतरती है तो वो इन पर ऐसी है जैसे कि जोरदार बारिश हो। और क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो अंधेरे जिसके लिए बात की जा रही है और जिसके अंदर गरज और बिजली की कड़क जो कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि जो डरावनी आयतें आती हैं जिसके अंदर कुछ ऐसी बातें आती हैं जो मुनाफिकों के खिलाफ है, या सजा का जिक्र आता है, या जहन्नम का जिक्र आता है, या हिसाब किताब के दिन का जिक्र आता है, या मौत का जिक्र आता है और मौत के बाद के मरहलों का जिक्र आता है, तो ये डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और ये इनको इस तरह से नजर आती है जैसे अंधेरे हो, जैसे गरज हो, जैसे बिजली हो और जोरों की आवाजें हो रही हो। क्योंकि कुरान मजीद में हर तरह की आयतें हैं, जहां जहन्नम का जिक्र है वहां जन्नत का भी जिक्र है, जहां डराया जा रहा है वहां खुशखबरी भी दी जा रही है। लेकिन इनके लिए ये सब एक जोरदार बारिश की तरह है। जब क्योंकि ये अमल नहीं करते तो इन्हें जो खुशखबरियां हैं वो इन तक उस तरह नहीं पहुंचती, लेकिन ये जानते हैं कि इनके अमल में कमी है तो ये डर जाते हैं जिन आयतों में जिन आयतों में सख्ती है उनसे। तो ये क्या करते हैं, इन्हें जिंदगी जो दुनिया की जिंदगी है वो आसान लगती है और मौत से डरते हैं, क्योंकि अगर मौत आ गई तो वो सारे आगे के जो मरहले हैं मौत के बाद के, वो सब भी उन्हें झेलने पड़ेंगे और उससे ये डरते हैं और इन्हें लगता है कि किसी तरह मौत ना आए। हम इस जिंदगी को जो आसानी से जीते जा रहे हैं बस इसी तरह, जितनी लंबी हो उतनी जिंदगी लंबी हो, जितनी पॉसिबल उतनी लंबी हो जाए जिंदगी, हम हमेशा जिंदा रहें। तो मौत से डरने के वजह से ये क्या करते हैं, ये अपनी कानों में उंगलियां डाल लेते हैं। मौत को तो नहीं टाल सकते, लेकिन अब इन अहकामातों को नहीं सुनना, अब कुरान की आयतों को नहीं सुनना। क्यों? क्योंकि हमें इनसे डर लगता है। तो उस तरह से ये कहा जा रहा है कि ये अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं। फिर कहा गया कि अल्लाह ने काफिरों को घेर रखा है, कि क्योंकि अब इनके अंदर बाहर सब कुछ अल्लाह सुब्हान तआला जानता है और ये मौत से नहीं बच सकते, ये कहीं भाग के नहीं जा सकते। अल्लाह सुब्हान तआला ने इन्हें घेर रखा है, यानी ये पूरी तरह से अल्लाह सुब्हान तआला के काबू में है, कंट्रोल में है। यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अबसारहुम, करीब है कि बिजली की चमक उचक ले जाए इनकी निगाहों को। कहने का मतलब ये है कि पॉसिबल है कि इनकी देखने की सलाहियत ही छीन ली जाए इनसे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। अगर हम पिछली आयत के से समझें इस बात को कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि उनका नूर अल्लाह सुब्हान तआला ले गए हैं और अब वो हिदायत की तरफ कभी नहीं लौटेंगे। तो उसी तरह से अगर अल्लाह सुब्हान तआला चाहते तो ये पॉसिबल था, करीब था, मुमकिन था कि इनकी आंखें ही उछक ले जाती बिजली, यानी अब ये देख ही नहीं पाते आगे। मगर इनके साथ इस तरह से नहीं हुआ है, अब तक इनके ऊपर अल्लाह सुब्हान तआला की रहमत है। कुल्लमा, जब कभी अदाअ, रोशनी करती है बिजली, लहुम, उनके लिए, मशऊ, उसमें चल पड़ते हैं, थोड़ा बहुत चल लेते हैं। यानी जब थोड़ी बहुत आसान अहकामात आते हैं कुरान में जो इनके फायदे के होते हैं, जो इन्हें अच्छे लगते हैं, वो उस पर थोड़ा चल लेते हैं, उसको फॉलो कर लेते हैं। और जहां इन्हें नुकसान या जहां इन्हें लगता है कि अब हमसे नहीं हो रहा, वहां रुक जाते हैं और अपने फायदे की चीजें आयतें पिक कर लेते हैं कुरान में से कि ये हमारे फायदे का, ये हमें इजीली कर सकते हैं और ये हमें, यानी समझ लीजिए जैसे अगर रोजा करने के लिए कहेंगे तो रोजा नहीं करेंगे, लेकिन इफ्तार करने वालों के साथ बैठ जाएंगे इफ्तारी के लिए कि भाई इफ्तार करने वालों के साथ इफ्तारी करने में सवाब है। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रही हूँ कि कुछ इजी अहकामात, जैसे ईद मनाने के लिए कहें तो ईद तो मना लेंगे, लेकिन अगर ज़कात देने के लिए कहें, सदका देने के लिए कहें रमज़ान के तो वो नहीं हो पाएगा। या आप इस तरह से समझें कि जब इनके फ़ायदे की कोई बात है, कि जैसे किसी को कहना है कि देखो झूठ मत बोलो, कुरान में ना झूठ कहने वाले के लिए सज़ा है। तो जब इन्हें इसे यूज़ करना होगा तो इसे यूज़ कर लेंगे इस आयत को। लेकिन जब अ, खुद कुछ फ़ॉलो करना हो और इन्हें लगे कि नहीं ये तो मुश्किल है हमारे लिए, तो उसमें ये खड़े हो जाएँगे, अब नहीं हो रहा हमसे। तो थोड़ा बहुत ये फ़ॉलो कर लेते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर चाहता अल्लाह,
लज़हबा, अलबत्ता वो ले जाता बिसमइहिम, उनके कान, व अबसारिहिम, और उनकी निगाहें, उनकी आंखें। इन्ना अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अला कुल्ली, ऊपर हर शय, इन चीज के, कदीर, कुदरत रखने वाला है। ये मुमकिन था कि अल्लाह सुब्हानहू ताला इनकी आंखें और इनके कान भी, जिस तरह से पिछली आयत में कहा कि सुम्मुम बुकमुन उम्युन, वो अ, बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं। तो वो जो आयतें थी उसमें बहुत सख्ती थी। यहाँ कुछ लीनियंसी है, यहाँ कुछ इनको रियायत दी गई है, क्योंकि ये कुछ हद तक फॉलो भी करते हैं, थोड़ा बहुत इस्लाम को फॉलो भी कर रहे हैं। तो जहां इन्हें फायदा नजर आता है, जहां इन्हें आसानी नजर आती है, तो ये चलते भी हैं उसमें। वो जो थे वो बिल्कुल अ, उनके लिए सख्त अहकामात थे। मुनाफिक का जो रूट है वो है नून फा काफ, नफका। नफका कहते हैं टनल को, जिसके दो मुंह होते हैं। मुनाफिक जो होता है वो डबल फेस होता है। वो जहां उसको फायदा होता है उस तरफ से, यानी वो टनल में घुस गया एक तरफ से, जहां से उसको फायदा हुआ वहां से निकल गया, या जहां से उससे खतरा हुआ वो दूसरी तरफ से निकल गया। नाफा का हमने और भी एक जगह पढ़ा था जो सेम रूट है, युनफिकून। युनफिकून हमने पढ़ा था, वो जो खर्च करते हैं, उसका भी रूट है नाफा का, टनल की तरह, कि पैसा एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है। और इसका भी सेम रूट है, नून फा काफ। इन सारी आयतों के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू ताला मुनाफिकों के बारे में जब हमें बताते हैं, और काफिरों के बारे में जब हमें बताते हैं, और उनकी अलामातें और उनकी सिफात जब हमें बताते हैं, तो उससे हमारे को ये सिखाने का मकसद है कि कहीं हम में इनमें से कोई क्वालिटी ना हो, कहीं हमारा दिल ऐसा ना हो कि उसमें कोई मुनाफिकत हो या उसमें कोई कुफ्र हो। कहीं हम अल्लाह सुब्हानहू ताला की सिलेक्टिव अहकामातों पर बिलीव करते हों और फॉलो करते हों, और कुछ को हम ले लेते हों और कुछ को हम छोड़ देते हों। कहीं हम में ऐसी कोई कमी ना हो। अपने आप को सुधारने के लिए ये सारी आयतें आई हैं। ये आयतें इसलिए नहीं आई हैं कि हम दूसरों को जज करें, और कुरान के ज़रिए हम ये देखें कि दूसरों में कौन सी कमी है, और दूसरों के लिए फतवे जारी करें कि ये शख्स में ये बुराई है और इसमें वो बुराई है। और ये अहकामात सिर्फ हमें खुद को देखना है कि हम कैसे हैं। अपने दिल को साफ करना है, अपने दिल की सफाई करनी है, अपने आमालों को सुधारना है, अपनी नियतों को सुधारना है, ताकि हम अपनी आखिरत को सुधार सकें। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू ताला तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे माल नहीं देखता, वो तुम्हारी नियतें और तुम्हारे दिल देखता है। कुछ लोग आपने देखा होगा कि ज़ाहिरी तौर पर बहुत खूबसूरत दिखने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ अप टू डेट, चेहरा अप टू डेट, कपड़े अप टू डेट होते हैं, लेकिन अपने आमाल और अपने दिल का जायजा नहीं लेते। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना माल है और आप कितने खूबसूरत हैं। क्यों? क्योंकि चेहरा और खूबसूरती भी अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से ही दी गई है, और माल भी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ही तक़सीम किया है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना माल है, क्या आपके पास, आपका दिखने में आप कैसे हो। जो अल्लाह सुब्हानहू ताला जिस पर आपकी सजा या जजा का दारोमदार है, वो आपकी दिल है और आपकी नीयतें हैं। अपनी आखिरत को सुधारने के लिए और जन्नत को हासिल करने के लिए अच्छे आमाल करने जरूरी है, और आमाल ऐसे हो जिनके पीछे अच्छी नीयत भी हो। दिल का साफ करना भी जरूरी है, क्योंकि जन्नत सिर्फ उन लोगों को नसीब होगी जो कल्बे सलीम लेकर अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने हाजिर होंगे। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सूरह शौरा में आयत नंबर 88, 89 में फरमाया है कि उस दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी, मगर वो शख्स कामयाब होगा जो अल्लाह के पास कल्ब सलीम लेकर आएगा, यानी साफ और पाक दिल लेकर आएगा। तो अपने आमाल को सही करने के लिए इल्म का सीखना जरूरी है, कुरान का जानना जरूरी है,
तभी हम पता कर पाएंगे कि हमें करना क्या है और हमें किस चीज से बचना है, हमें गुनाहों से कैसे बचना है, हमें नेकियां कैसे करनी है। जाने बगैर तो अमल करना मुमकिन नहीं है। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि अगर हमने कुरान को सीख लिया, हमने इल्म को जान लिया, तो हमें अमल करना पड़ेगा और अमल करना मुश्किल है, तो बेहतर है कि हम सीखें ही ना। क्योंकि उन्हें लगता है कि जानने के बावजूद अगर हमने अमल ना किया तो हमें सजा मिलेगी। तो क्या जिसने जाना नहीं और अमल भी नहीं किया वो बच जाएगा? देखिए, उस दिन, कयामत के दिन, सिर्फ इंसाफ कायम होगा। उस दिन सिर्फ हक बात होगी। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई शख्स कहेगा, जिसने अमल नहीं किया, वो ये कहेगा कि ये कहकर बच जाएगा कि क्योंकि मैं जानता नहीं था इसलिए मैंने अमल नहीं किया तो मुझे जन्नत में डाल दो। ऐसा नहीं होगा। जब हम दुनिया के लिए इल्म हासिल करते हैं, दुनिया की जिंदगी को सुधारने के लिए दुनिया का इल्म हासिल करते हैं, हम लैंग्वेजेस भी सीखते हैं, हम साइंस भी पढ़ते हैं, मैथ्स भी पढ़ते हैं, और हम बहुत सारे उलूम को जानने की कोशिश करते हैं, हम इंजीनियरिंग भी करते हैं, हम डॉक्टर्स भी बन जाते हैं। हम सारी नॉलेज को, जितनी ज्यादा डिग्री हमें दुनिया में मिलती है, हम उसको लेने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, और ये करना भी चाहिए। बिल्कुल हमें अपनी दुनिया के अंदर इल्म को हासिल करना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, और उसी तरह हमें दीन का इल्म भी हासिल करना जरूरी है। अगर हमें आखिरत को सुधारना है तो हमें दीन का इल्म हासिल करना पड़ेगा, अगर हमें दुनिया की जिंदगी को सुधारना है तो हमें दुनिया का इल्म हासिल करना पड़ेगा। और इल्म को सीखना है सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, यानी सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए। इसके पीछे और कोई मकसद, दिखावे के लिए, या कोई हमारा स्टेटस सोसाइटी में बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि हम कुरान समझते हैं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए। जो भी हम काम करें इस दुनिया में, हम अल्लाह की रजा के लिए करें, क्योंकि अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है। और जब हम अल्लाह के लिए खालिस कोई काम करते हैं तो उसका अजर अल्लाह सुब्हाना ताला से मिलता है हमें। मुनाफिकत से हिफाजत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुख्तसर सी मकबूल दुआ सिखाई है, जो दिल को साफ करती है और इखलास से भर देती है। ये दुआ हम अक्सर पढ़ सकते हैं। दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनन निफाक। ए अल्लाह ताला, मैं, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह ताला, मैं, इन्नी, बेशक मैं, आऊज़ु बिका, मैं पनाह मांगती हूँ तेरी, मिनन निफाक, निफाक से, हिपोक्रेसी से। ओ अल्लाह, आई सीक रिफ्यूज इन यू फ्रॉम हिपोक्रेसी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे खत्म होता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please don't forget to like it and share it with others so they too can benefit, inshallah. Your comments and feedback are valuable to us, so do share your comments below. And if you haven't already, subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates on more Islamic reminders and Quranic insights. Remember, every small effort in spreading beneficial knowledge is counted as Sadaqah Jariyah, continuous charity. Jazakumullahu khairan kaseera for your support and duas.